हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं जो है आज एक वीडियो लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो का टाइटल है उर्फी वांट्स मनी, फेम एंड एसआरके। एसआरके भी रैन अवे फ्रॉम होम बिकॉज, तो उसमें अपना ये पूरा बताएंगे करिश्मा मेहता एपिसोड। तो ये ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के चैनल का वीडियो है। इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और इंस्टा और फेसबुक पर अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, है ना। तो अभी जो है आज का वीडियो, इसे हम देखते हैं और क्या है बातें, सारा इनके पीछे की कहानी जानते हैं, जो उर्फी दीदी बताएंगी हमें। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। I don't want a guy to pay for shit. Like I feel like if a guy pays for you, he starts expecting things. Not just sex, but even other things. Like you listen to him and मैं तो बाप की नहीं सुनी किसी आदमी की क्या कर सही सकती बात हूँ. है। अपने पैसे खुद कमाने चाहिए That's why I भाई, want to सही buy बात my है। तो own thing. किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहनी चाहिए। Thank you so much for being here. You look lovely. Thank And you. as expected, we were all waiting to see what you wear, and you look amazing. No, you too. You look amazing. Thank you. Welcome to Humans of Bombay. I have to admit that I'm by far the most excited for this episode. Same. I'm also very excited. Yeah. Okay. So I'm going to start with a question that's a little deep. As a teenager, when you were in Lucknow, you mentioned that you used to wear crop tops and hide these crop tops with jackets Yeah. on top. To now today, where you're 100% you and you literally wear your heart on your sleeve. What has the journey of self-acceptance been like? I wasn't that conscious when I was a teenager. Actually, back then, as in with my body and with my face, I thought I'm a good-looking girl. I'm good. Self-acceptance. My parents didn't accept it, as in they were not accepting of the clothes that I was wearing. The family, they were very conservative, and I don't know what the big deal was, because I was seeing it on television कि करीना पहन रही है ना, तो मैं क्यों नहीं पहन सकती हूँ? So I was just like, they would insert religion, they would insert culture, and so I just didn't get it. Yeah. I was like, अभी तो I जाली always जाली पहन believed रखी that I was born into the wrong family. अरे अपने फैमिली के लिए तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए यार। I was a very bold girl, but my Boldness family was है। not allowing that. So when I left my house, I couldn't be more happy. I think till date, I feel that was the best decision I took when I ran away from my Wow. house. Best decision. Even if अगर मैं famous नहीं भी होती, मेरे पास पैसे नहीं भी आते, still that freedom meant a lot of things, Just being able to do whatever you want means a lot. So yeah, I think you asked me something else, but I answered something else. No, I think it all adds up to the same Yeah. thing. It works out. So we want to build a little bit of a character sketch of you. How were you in your childhood? How have those things shaped you today? So what was it like growing up in Lucknow? Did you face a lot of backlash, taunts from family? She is born in members? wrong Because country, I think. You said something interesting कि मुझे If समझ she नहीं would आया have कि why couldn't been I in like it? What does California, culture or so religion have to do with I it? think she would have been shaped on. me as a person. If you asked me this question a few years back, She is I doing wouldn't have been able to something that she answer this in a loves. positive way. But now I feel that whatever happened with me in the past, like, was required for me to happen to become this person. मतलब जो अभी मुझे online trolling जितनी होती है, I am unaffected because I've been trolled so much by my relatives, family हाँ or बिल्कुल whatever. कि ये Though ट्रोलिंग I क्या है। don't care anymore. मतलब मुझे जो झेलना था मैं झेल चुकी अब हूँ. फर्क नहीं पड़ता है। Faceless people on the internet can't hurt me. So I also feel that whatever happened with me in the past kind of made me stronger. That I am who I am today. And of course, हाँ बचपन में तो I'm not religious at all. I'm not even spiritual. I don't know what वो I तो अभी am. भी I'm नहीं है। yet discovering. बचपन में भी मैं ऐसी ही थी. तो but parents or relatives don't understand this, especially conservative household. They're like, करना ही है. आपको ये सब चीजें करनी ही है. But I didn't really get the importance of it. I feel your relationship with God is very हाँ personal. ये बात तो सही कही। It's not इस्लाम में तो बहुत ज्यादा जो दूसरा बंदा फॉलो करता है, जिस वो तरह से दूसरा बंदा कोई भगवान या अल्लाह की इबादत करता है, वो
तीसरा बंदा सेम नहीं कर सकता है. Hmm. It's just हाँ personal. I was always bold. Hmm. मुझे अच्छा लगता था छोटे कपड़े पहनना. बचपन से ही जब लखनऊ में मिलते भी नहीं थे, मैं काट पीट के खुद कर लेती थी. मैं कोई टी शर्ट आती थी, मैं उसको काट के क्रॉप टॉप बना लेती थी या ट्यूब टॉप बना टैलेंट लेती थी. I was always on a lookout. मैं मॉल जाती थी, मैं दिस देखती थी टैलेंट शुड बी सबसे प्लेस्ड वो स्पेगेटी टॉप्स कहाँ हैं, वो वन साइड ये सब कहाँ है. नहीं होता तो मैं खुद काट के बना लेती थी. I was always look out for these kind of clothes that made me feel myself. I'm not saying कि छोटे कपड़े made me feel like myself, but फील माई I माई never सेल्फ really measured them कि ये छोटे हैं बड़े हैं. तो मुझे बस अच्छा लगता था, मैं पहन लेती थी. बस it was what I was seeing on कैसे फील करना television. है ऐसे समझ And नहीं it आया made you कुछ happy. हाँ, तो only clothes made me happy. Till date, only clothes made me happy. No guy has given me orgasm except clothes. I'm not even kidding. Oh my God. आपको कब पता चला कि मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना है, मुझे मीडिया में कुछ करना है? या पता तो मुझे अभी भी नहीं चला है कि मैं कर क्या रही हूँ. पता तो किसी को भी नहीं है कि ये भी कर क्या रही है. मुझे भी नहीं पता है. I didn't even know. होते होते क्या हो गया मुझे भी नहीं समझ आया और दुनिया को भी नहीं समझ आया. I still don't know what I'm doing. But I knew one thing बचपन से. I wanted to be an actor, but a fashionable actor. Like always used to see people on screen, ऐसे टीवी में मैं देख रही हूँ, इंटरव्यू है, ऐसे दिख रहे हैं, कुछ भी पहने तो मैं बोलती भी थी यार इतने पैसे अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते उनका इतना हैं. नाम हो गया I क्या was always पहनेंगे like वो that. But बचपन में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है. मुझे पता था तो मेरी नया फैमिली नया कभी जोश अलाउ नहीं होता है ना करेगी. तो मुझे था ये सपना है. It is just a dream that's gonna pass away as a dream. Right. But you mentioned in one of your interviews that you spoke to your father and said that I want to do fashion designing, and Yeah. he said that दर्जी बनना है. दर्जी ये स्मॉल टाउन में हर जगह है. इट्स नॉट जस्ट माय फादर. आई फील आप ऐसे कुछ अनकन्वेंशनल चीजें बोलोगे और 10 साल पहले स्मॉल टाउन में कोई अपने मम्मी पापा को बोलता कि मुझे फुटबॉलर बनना है तो अरे पागल है क्या. मतलब middle class people, small town people, they don't understand their dreams because financial मतलब वो इतना होता है कि financial security ज़्यादा ज़रूरी है. So they want you to have a financial security even if it's costing you your mental peace or whatever. So how did you decide कि this is what I want to do और ये तो मैं करूँगी? मजबूरी. मैंने तो डिसाइड किया ही नहीं था. मैं तो भाग गई घर से. और मैं इसलिए नहीं भागी थी कि मुझे कोई मतलब फ्रीडम चाहिए थी. It was just my house had become very unbearable. It was too mentally it was exhausting. I was मतलब mentally हो नहीं पा रहा था. मतलब too much torture like मतलब from relatives, family. इस्लाम में बहुत ज्यादा वो होता है ना कि आपको too much to करना ही take in. करना है I रिलीजियस tried suicide also जो भी a आपकी few ऑफरिंग्स times. हैं Then I thought to myself कि कभी भी कर सकते हैं सुसाइड. एक बार लाइफ को चांस दे के देखते हैं. So I just ran and I was doing everything that was possible to earn money. ट्यूशन भी पढ़ा रही थी, कॉल सेंटर में भी काम कर रही थी. करते करते मुंबई आ गई जॉब अपॉर्चुनिटी के चक्कर में. पर अब मैं यहाँ पे आई, मैंने देखा यहाँ तो ऑडिशन भी होते हैं. बचपन से सपना था. तो मैंने कहा ठीक है जॉब भी ढूंढते रहेंगे, ऑडिशन देते रहेंगे, कुछ लग गया. होते होते पता नहीं कैसे कहाँ पे क्या पहुँच गए. Destiny, I think, had a part to play with it. Destiny and I would say perseverance. Perseverance. कि I'm not कि going to मैं give up. yeah I didn't stop. Once I started I never stopped and I was always very ambitious. Yeah. I didn't know how. महत्वाकांक्षी I हैं didn't have a game plan, nothing. But in my mind I always had this thing कि मुझे कुछ बड़ा करना है. मुझे पैसा चाहिए because of course as a child I was being told by everyone that I'm not good enough and मैं ये हूँ मैं वो हूँ. As a girl I should stay in my limits, all that. So I had this thing बचपन से कि एक दिन मैं तुम लोगों को बताऊंगी, you guys are going to come to me कि ये कर गई. So I always had it. I don't know how. Yeah. We have to talk about this part of your life. आपने इंटरव्यू में कहा था कि there was a time where your childhood had abuse, a lot of verbal and physical abuse, Yeah. but there was one time when you almost fainted, or you did faint when you were being physically abused. So can you walk us through? I would also like to correct. There are a lot of media reports that say I was sexually assaulted by my father. That never happened. Yeah. But a lot of people say that. Oh, really? Yeah, Okay. I've read it a lot. Okay. Just correcting here, it was just physical and verbal. Physical as in मारपीट, which I've also seen people say कि एक थप्पड़ में क्या इतना बोलती है कि अरे सबके घर में मार पड़ती है बच्चों को, सबके घर में मार पड़ती है बच्चों को. ये क्या लॉजिक हुआ? मतलब everyone deals with trauma differently.
कोई आदमी जो 7 फीट के पानी में डूब के मर रहा है, तुम ये नहीं बोलोगे कि अरे ये तो 30 फीट के पानी में डूब के मरा, तो ये ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट या ग्रेव है। ज्यादा इसका वो ज्यादा उससे मरा है तड़प के। करेक्ट। जो 7 फीट के पानी में डूब के मर रहा है, जो 30 फीट के पानी में डूब के मर रहा है, मर तो दोनों रहे ना। सो यू कांट मेजर ट्रॉमा. यस। So it was just more than physical, it was mental also. Like mentally, it was just very frustrating. And I forgot the question. So the question is that how did you put up with it? Because it's such a childhood is supposed to be carefree. Childhood is supposed to No, be when no, you're it growing up is was- supposed to be protected. This is a very reverse situation. So how were you dealing with that? I didn't know how I was dealing. वो अब बड़े होके निकलता है. You know, now I understand there are some personality traits की maybe these are because of my childhood trauma. As in, I get angry sometimes. छोटी छोटी बातों पे मैं पागल हो जाती हूँ. And I just go crazy. Like अभी तो I'm still in good control. बीच में तो I would go angry. I could have even killed someone. So I feel like now I get to know. उस टाइम डील कर ही नहीं सकते थे. आपको बस सहते जाना है. So I was just यही सोचती थी कि बड़े होके मैं अपना जब होगा तब देख लूँगी. अपना जब होगा कोई नहीं, अभी तो शायद सहना ही पड़ता है सबको. So as a child in these kind of households, you can't deal with these things. You just have to, and there's no one to talk to. You can't even tell anyone, क्योंकि किसको बताओगे, क्या बताओगे? Were you close to your siblings? You have. Yeah, we were close, but we were never taught to be loving. Okay. So we were not like we would sit together and talk, yeah, Chiyuwa, I love you. We were never taught like that. We were close in ways that hardships got us closer, but we never spoke to each other heart to heart. We still don't. But we are friends now, but we were not close as siblings. And what was the final straw? Was there एक particular incident कि अभी मुझे भाग के जाना है? एक नहीं था. होते बचपन से होते then later when I was 15, someone uploaded my picture on a porn site. I've mentioned this. Yeah, it was a normal picture. As in, I uploaded a picture wearing a crop top, tube top, so, or as my Facebook profile photo. Yeah, someone downloaded those pictures and uploaded it on a porn site without morphing, without anything. Just the same photo. Just the same photo. This time it was on a porn site. Correct. धीरे धीरे सबको पता चल गया कि अरे porn site पे इनकी पिक्चर है, तो everyone started like blaming me a lot. I was told that I'm a porn star. I was like, where's the video? So they're like, नहीं ये porn star है. Even my own father, he was like, she's a porn star. You know, I think my father was trying to gain sympathy from all this. He was telling everyone that the porn site website people have asked me for 50 lakhs. Like he's told the relatives that if you want to remove your pictures, and I was like, that's not possible, but I couldn't say anything because मुझे मार इतनी पड़ रही थी, मुझे मारा जा रहा था, मुझे पीटा जा रहा था, and I was just so confused that I'm the victim here. Why are you hitting me? Like I've not done anything. But they were not ready to believe it. They were like कि ये तो porn star है, ये तो porn star है. So I endured that for 2 years, and it was just too much to take in from their relatives, from my own father. So it just one fine day. How old were you? 17 when I ran Oh. away. Yeah, I just turned 17. So what did you decide, and what did you have with you when you decided, okay, I'm going Nothing. I didn't have anything. Me and my sisters just left, and then we went to some पुलिस स्टेशन और समथिंग 109 पता नहीं क्या है कि भाई हमें नहीं रहना है फादर के साथ ये वो. तो वहाँ पे जाके भी आई डिडंट रिसीव अ गुड रिस्पॉन्स, बट ये था कि माय फादर देन जस्ट ही वाज लाइक कि नहीं ऐसे कैसे अलग हो सकती है. बट माय एल्डर वन वाज 18 एंड आई वाज ऑलरेडी 17. दे वर लाइक छोड़ दो. दे वर लाइक हम वापस तो नहीं जाएंगे. देन वी रन अवे. And then what? How did the next few months? How did the next? It was so very difficult यार. सुबह हम ऐसे रात में पार्क में सो जाते हैं या किसी फ्रेंड की कार में सो जाते हैं. सुबह जब उनके मम्मी पापा ऑफिस जाते तो हम खाना पीना खा लेते. फिर हम कहीं ना कहीं इट वाज वी वर लिविंग लाइक वैगाबॉन्ड्स कि अच्छा अभी तुम्हारे मम्मी पापा घर पे नहीं है 10 दिन के लिए, तो हम उनके घर पे चले गए रहने के लिए. तो उसके यहाँ वी वर, बट हम किराए पे घर देख रहे थे, मी एंड माई सिस्टर्स. तो मिल नहीं रहा था. देन आउटस्कर्ट्स पे नई नई बिल्डिंग्स बन रही थी, तो वहाँ पे किसी ने हमें ऐसी 2 BHK दे दिया 6,000 रुपये में. ओनर ने इतना ध्यान नहीं दिया और हमने बोल दिया कि हम यहाँ पे, आई वॉज इन कॉलेज, कि हम कॉलेज कर रहे हैं, हम कहीं रायबरेली से आए हैं. तो दे जस्ट गिव इट टू अस.
और पैसे कहाँ से आते थे? मैं ट्यूशन पढ़ाने लग गई थी ओह! बच्चों को। अच्छा। जितने भी जानने वाले लोग थे तो मैं पैदल जाती थी ट्यूशन, मतलब जैसे ही मैंने घर लिया मैंने उसी दिन से ट्यूशन शुरू कर दिया था। तो मैं मतलब पैदल जा के बच्चों चलो को कुछ तो ट्यूशन अच्छा पढ़ा करा रही है। थी। किस सब्जेक्ट में? मुझे तो खुद भी कुछ नहीं आता था, बट 8th तक मैं मैथ्स जो भी था, जितने भी सब्जेक्ट्स है 8 तक, किंडरगार्टन से लेकर 8 तक मैंने कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था। बट वो भी मैंने 2-3 महीना ही किया, देन मैं दिल्ली चली गई थी। बिकॉज़ माय फ्रेंड्स वर डूइंग कॉलेज देयर, ओके। तो वो सब फ्लैट्स लेके रहते थे। तो आई वाज़ लाइक यार मुझे यहाँ तो लखनऊ में कुछ हो नहीं पाएगा, कोई ग्रोथ नहीं है, मैं यहाँ कॉल सेंटर में कुछ काम कर लूँगी। तो मैं वहाँ गई, वहाँ पे मैं कॉल सेंटर में तो मेरा मन ही नहीं लगता था। मैंने जॉइन किया, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैं 4-5 लड़कों को बोल देती थी प्लीज़ वो जो भी बोलते हैं ना, जो बोल रहा है, जो भी सर जो बोल रहे हैं प्लीज़ कर दो। मुझे ये भी नहीं पता है मैंने किस बात की सैलरी ली, मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया है। वही लड़के बेचारे कर देते थे मेरा काम। एंड आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड, आई वाज़ स्टिल नॉट सैटिस्फाइड। आई वाज़ लाइक क्या करूँ? तो मैं किसी को असिस्ट करने लगी, वहाँ पे फैशन डिज़ाइनर टाइप था। मैं असिस्टेंट बन के कपड़े लेके इधर-उधर जाती थी। एंड मतलब अकेले थे दिल्ली? Your sisters were still या in दे वर Lucknow? इन लखनऊ। Okay. मैं अकेले। माय यंगर वन वाज़ इन स्कूल। बड़ी बहन थोड़ा-सा शी वाज़ वेरी शी आई डोंट थिंक सो शी हैड द सेम माइंडसेट एज़ हाँ, मी दैट शी वांट्स टू डू समथिंग। हाँ, आई डोंट थिंक सो दे वर कॉन्फिडेंट आई इनफ। थिंक सो। For some reason I wanted to enjoy the freedom because I saw that half of my बैचमेट्स फ्रॉम स्कूल वर इन दिल्ली enjoying going out। लखनऊ में तो इतना था नहीं, मैं देखती थी इनकी फोटोज इंस्टाग्राम पे, ये सब दिल्ली विल्ली घूम रहे हैं मजे से, मतलब कॉलेज के नाम पे। तो मैं भी उसी चक्कर में ज्यादा निकल गई एंड सडनली फ्रीडम एंड एवरीथिंग। या सो ये था वीडियो भाई। तो भाई बताना कैसा लगा आपको, कौन कौन फैन है उर्फी का, तो ये भी बताना मुझे। उर्फी जावेद को कौन कौन पसंद करता है, लाइक करता है या लाइक करती है, तो बताना भाई। और अपना स्ट्रगल बता रही थी, है ना, इनकी लाइफ में जो जो स्ट्रगल्स रहे हैं, अब क्या बोलेंगे, स्ट्रगल ही बोलेंगे, इनके लिए तो स्ट्रगल ही है वो, है ना। तो ये है, इन्होंने जो है कि इस पाथ को चुना, ठीक है। तो ये था। बाकी आप किसी लड़के को देखें, अगर आप मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, आप विराट कोहली का एग्जांपल ले सकते हैं। विराट कोहली इज़ अ हैंडसम गाय, बट उसने अपनी लाइफ को मतलब देश के लिए किया ना, जो भी किया, तो एक अच्छे वे में काम किया। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई सुंदर है तो उसको अपनी सुंदरता के लिए मतलब बॉडी ओरिएंटेड हो जाए वो और ज़्यादा। सबकी अपनी-अपनी थॉट प्रोसेस, सबका अपना-अपना जो है। तो हैंडसम जो लड़के होते हैं, तो क्या वो पूरे बॉडी ओरिएंटेड हो जाते हैं? लड़कों को तो मैंने कभी नहीं देखा ऐसे बॉडी ओरिएंटेड होते हुए कि भाई अब तो हम बड़े सुंदर हैं, बड़े स्मार्ट हैं, तो भाई अब तो जो है कि हम ये सब करेंगे। हमने लड़कों को तो कभी नहीं देखा खैर। अब उर्फ़ी दीदी तो भाई अब आपकी क्या राय है? आपकी राय मैटर करती है भाई। आप लोग जो देख रहे हैं वो बताएँ कि भैया आप कमेंट सेक्शन में इन पे क्या टिप्पणी करेंगे आप, ठीक है? तो ठीक है, इनको ये फ्रीडम लगती है तो इनको लग रही है तो फिर जीना चाहिए इनको उसी तरीके से, है ना? क्योंकि आप किसी के दिमाग में जाकर के आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो जिसका जितना है, वो उसी हिसाब से अपना जो है कि जीता है। तो भाई इनको अगर इसमें ये चीज़ इनको फ्रीडम लग रही है, तो अच्छी बात है, इनको ऐसे ही घूमना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पर्सनली क्या दिक्कत हो सकती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हम ना तब देखते थे ना आज देखते हैं, तो अपने को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ठीक है भाई, बाकी आप अपनी राय रखना, आपकी राय मैटर करती है। और सेकंड पार्ट लाना हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ले आऊँगा सेकंड पार्ट भी, ठीक है? देख लेंगे फिर, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।